Hello students, today we will start a new chapter, Retaliation and Struggle of British Empire. That how Indians retaliated against the Britishers and how we started how Britishers came to India, how they managed the things, how Indians started opposing them. So in this chapter we will be reading all these things. First, on 23rd September 1600, few of the British merchants, traders, they started a joint venture company known as East India Company. East India Company was started in 1600, 23rd September. On 31st December, on the New Year Eve, 1600, same year, Queen Elizabeth, she gave the monopoly right, sole right, actually the word is sole right, to the company to trade with East. That means this will be the only British company to trade in the eastern parts of the Asia. Clear? Now the company was not having any kind of competition with other British companies. It was only British company. The competition was there for the British East India Company, but that was with the French East India Company, a Dutch East India Company, Portuguese East India Company. But from Britain, there was only one company, that is British East India Company. Now next is in 1612, the first trading permanent trading hub was set up in Surat. In 1612, the first permanent trading hub was set up in Surat. Now next is in 1604, this is also an important date, 1604, in Madras. Now we are calling Chennai, that time Madras, St. George Fort was set up. St. George. Fort was set up in Madras. These are the important dates which are given in the beginning of the chapters. In 1717, 1717, they got from the Mughal Emperor Farrukh Siyar, they got ownership of 38 villages. Mughal Empire was weakened after 1707. If Aurangzeb died in 1707, and after that there was a decline in the Mughal Empire, but still they were quite powerful. In 1717, Farrukh Siyar gave 38 villages के अच्छा ये तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पर ओनर हो. तो वो 38 विलेजेस की जो ओनरशिप थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई. फिर क्योंकि वीक मुगल रूलर्स की एक और प्रॉब्लम थी, उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए थी. मामूली 3000 रुपीज में उनको जस्ट फॉर 3000 रुपीज दे गेव ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट. क्या अच्छा तुम बिना टैक्स की ट्रेड कर लो सिर्फ 3000 रुपए में. In 3000 rupees they got duty free trade right by the Mughal Empire, and they also got rebate in the toll. उनको कुछ हद तक रिबेट भी मिल गई थी, कुछ कंसेशन मिल गया था, रिबेट में कंसेशन. एंड दस्तक, these were the special letter of approval which they were issuing. तो दस्तक का भी उनको यहीं पर बेनिफिट. अच्छा, establishment of British East India Company, how they became the ruler, gradually बात का भी बड़ा पार्ट है सिलेबस का, वो डिडक्ट हो गया इस साल के लिए. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट कि
कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करी। बाय 1757 उन्होंने सारे जो अदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे वो डच हो, पोर्चुगीज हो वगैरह, उन सबको हरा दिया था। ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट वाज द ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी दैट टाइम इन इंडिया। 1757 तक बाकी सारे कॉम्पिटिटर खत्म, लार्जली खत्म, थोड़े बहुत भले कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, बट मेनली वो खत्म हो चुके थे। एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है 10th अप्रैल 1756 के लिए। 10th अप्रैल 1756 के दिन अलीवर्दी खान, जो बंगाल के नवाब थे उस समय, अलीवर्दी खान, वो डेथ हो जाती है। उनके जो दामाद थे, सन इन लॉ, छोटे वाले सन इन लॉ सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर। तो सिराजुद्दौला रूलर बन जाते हैं। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो दामाद होते हैं उनके सन इन लॉ होते हैं, एंड सिराजुद्दौला बिकेम द रूलर। उस समय एक पूर्णिया के गवर्नर होते हैं शौकत जंग, पूर्णिया के, बंगाल में एक जगह छोटी सी पूर्णिया, वहां के गवर्नर को, वो भी राजा बनना चाहते थे, नवाब बनना चाहते थे। ब्रिटिशर्स की एक और वो कह सकते हैं नालायकी थी कि जो राजा से खुश नहीं था, वो ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट कर देते थे। पूर्णिया के गवर्नर को ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सपोर्टिंग कि हाँ हाँ तुम्हें राजा बनना चाहिए था, ये तो गलत है, सिराजुद्दौला राजा बन गया। पूर्णिया का गवर्नर भी उनसे खुश। अल्टीमेटली एक वॉर होता है 23 जून के दिन 1757, फेमस वॉर, बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला को एक उनका फेमस कमांडर होता है मीर जफर, वो धोखा देता है। मीर जफर बिट्रेड द नवाब। सिराजुद्दौला बड़े अच्छे इंसान, धोखा दे देता है। मीर जफर को ये होता है कि अगर सिराजुद्दौला मर जाता है, हार जाता है, जो भी होता है, तो ब्रिटिशर्स उसको राजा बनाएंगे। मीर जफर राजा भी बन जाता है, बट एक बड़ी कीमत पर राजा बनता है कि भाई एवरी मंथ उसे एक बड़ा अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता है। मीर जफर बिकेम द नवाब, रूलर बन जाता है। बट ये एक तरह से पैसा देकर रूलर बनने वाला है। 1757 में बनता है, बट 1760 आते आते ही वाज अनेबल टू पे। इतना पैसा हर महीने कहां से लाए? अब पैसा राजा के पास, नवाब के पास कहां से आएगा? टैक्स से, खूब सारा टैक्स लगा देता है, इस चीज पे टैक्स, उस चीज पे टैक्स, और अंग्रेजों से कोई टैक्स दे नहीं सकता। बड़ी प्रॉब्लम। इंडियन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आम आदमी सब दुखी, बार बार रिवोल्ट हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम ढंग से रूल नहीं करना है, तो वी हैव टू रिमूव यू। अब वो लालच के चक्कर में राजा बना था, वो लालच उसे ले डूबा। अल्टीमेटली मीर जफर को हटा देते हैं और एक नया राजा बनाते मीर कासिम। मीर कासिम बिकेम द रूलर। मीर कासिम बहुत इंटेलिजेंट था, उसे पता है ये जब जिसने सिराजुद्दौला, अच्छा इंसान, उसको हराया, मीर जफर को राजा बनाया जो खुद धोखेबाज को भी धोखा दे दिया, तो ब्रिटिशर्स कितने बड़े धोखेबाज। मीर कासिम को पता था कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। मीर कासिम की पॉलिसीज अपने लोगों को सपोर्ट करने की, इंडियंस को। अल्टीमेटली इंडिया के इतिहास का सबसे बुरा दिन में से एक आता है 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होती है, खूब पूरी ईमानदारी से मीर कासिम लड़ाई करता है, बट ही वाज अल्टीमेटली डिफीटेड।
उसके और ब्रिटिशर को समझ जाता है ब्रिटिशर किसी के सके नहीं, ये धोखा तो देंगे, तो उसने अपनी पूरी प्रयास करा, बट अनफॉर्चुनेटली मीर कासिम हार जाता है और यहां से ब्रिटिशर्स को दिवानी राइट्स मिल जाते हैं, सारे राइट्स मिल जाते हैं। बंगाल यानी आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन, बिहार, उड़ीसा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दिवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर? Next topic is the revolt of 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो रिवोल्ट था जिसे कई लोगों ने अपने अपने तरीके से नाम दिया। एक नाम आता है सुरेंद्र नाथ सेन। ब्रिटिशर्स ने तो इसे कहा कि इट वाज जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी। उन्होंने कहा ये सिपॉय म्यूटिनी थी, कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। इंडियंस ने अपने तौर पर उससे प्रेजेंट करा, जैसे सुरेंद्र नाथ सेन थे। He said that this started in the name of religion and ended in the name of freedom struggle। भाई चालू तो खाली धर्म के नाम पर मामूली बात पे हुआ, बट खत्म ये फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे हुआ। वीर सावरकर, डॉक्टर विनायक सावरकर, उन्होंने इसे कहा उनकी बुक थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि इट वाज द इंडियाज वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ऐसा डॉक्टर विनायक सावरकर ने कहा। अलग अलग लोगों ने उसे अपने तौर पर प्रेजेंट करा। ब्रिटिशर्स ने सिपॉय म्यूटिनी, कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इंडियंस जो थे उन्होंने कहा सर ये बड़ा एक फ्रीडम स्ट्रगल था। तो ये अपना अपना परसेप्शन या पर्सपेक्टिव लेके चला, एक नैरेटिव था जिसे पेश करने की ब्रिटिशर्स ने भी कोशिश करी, इंडियंस ने भी कोशिश करी। रीजंस की अगर बात करें तो देयर वर इकोनॉमिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात कहते हैं कि इंडिया से पैसा बाहर गया, उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे यहाँ लाए, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ले जाते थे, इंडियंस गरीब होने लग गए, एक बड़ा रीजन था। डलहौजी की जो पॉलिसीज थी, लॉर्ड डलहौजी के बाद एनेक्स करने की, अपने एम्पायर को एक्सपांड करने की, उनका भी एक बड़ा रोल था जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, सारे रीजन रहे रिवोल्ट के। इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं है, खाली इसके बारे में बताइए ये रीजंस रहे। अब ये जो रिवोल्ट था इसकी शुरुआत होती है 29 मार्च के दिन। एक घटना होती है, मंगल पांडे फेमस वो रिवोल्ट कर देता है। कुछ एक एनफील्ड राइफल के जो कुछ कार्टिलेज होते हैं, कारतूस होते हैं, जिनको ऐसे मुंह से खोलना पड़ता है, उसके पीछे जो एक कोई पेपर होता है, वो कहते हैं वहां पर फैट लगा होता है गाय या सुअर की चर्बी का। इसकी वजह से हिंदूज भी नाराज थे, मुस्लिम भी नाराज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि साहब आप ये वाले कार्टिलेज हटाओ। सरकार मान नहीं थी, रिवोल्ट हो गया। सबसे पहले मंगल पांडे बैरकपुर कैंट में उन्होंने रिवोल्ट करा। 34 BNI रेजिमेंट जो थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, तो मंगल पांडे पहले शहीद होते हैं इस रिवोल्ट में। बाद में मेरठ में, दिल्ली के पास एक जगह है मेरठ, मेरठ में 85 सोल्जर्स रिवोल्ट करते थे। वो मना करते थे हम तो काम में नहीं लेते, अपना ऑफिसर का ऑर्डर मानने से मना करते थे, और खुलेआम वो रिवोल्ट कर देते हैं। 10 मई के दिन ऑफिशियली एक तरह से रिवोल्ट की शुरुआत हो जाती है। अपने ऑफिसर वगैरह को तो गोली गोली मार देते हैं। वहां से मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उस समय जो लास्ट मुगल एम्परर थे, बुजुर्ग बहादुर शाह जफर, वो वहां पर दिल्ली में होते हैं। उनको कहते हैं साहब आप हमारे 12 मई के दिन वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर को
एम्परर डिक्लेयर करते थे आप भारत के बादशाह हैं, हमें एक सिंबॉलिक तौर पर एक लीडर चाहिए। बहादुर शाह जफर कहते हैं भाई मैं इस उम्र में, बड़े बुजुर्ग होते हैं, ना कोई सेना होती है, बस एक नाम मात्र के दिल्ली के राजा होते हैं, उनको वो कहते हैं कि आप भारत के राजा, आप हमारे नेता हो। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लीडरशिप। काफी टाइम तक दिल्ली पर इन सिपाहियों का कब्जा रहता है, बहादुर शाह जफर को वो डिक्लेयर कर देते हैं हिंदुस्तान का राजा। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी वगैरह भेजते हैं, वॉर होता है। अल्टीमेटली ये सिपाही क्योंकि नंबर में कम होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इनके पास सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता है, ना इनके पास इतने हथियार होते हैं, उनको सरेंडर करना ही है। 21 सितंबर बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड। अरेस्ट करने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर, हिंदुस्तान के लास्ट राजा, आप उसे कैसे भी कर सकते हो। फेमस एक लाइन भी है कि वहां पर जो जेल में होते हैं बहादुर शाह जफर, तब उनसे जेलर कहता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। कि भाई अब दमदमे में कोई दम नहीं है ना, आपके महल वगैरह किलो विलो में कोई दम नहीं है, बस अब तो खैर मांगो जान की, हो चुकी शमशीर, शमशीर हो तो तलवार हिंदुस्तान की, अब हो चुकी ठंडी, अब कोई मतलब नहीं है। तो बहादुर शाह जफर का कहता है फेमस रिप्लाई है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजी मतलब जो सोल्जर्स है, जब तक वो ईमानदार हैं तख्ते लंदन तक रहेगी देख हिंदुस्तान की, मतलब हिंदुस्तान की जो ताकत है वो लंदन तक देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि इनसे कोई हार जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर के सजा हो जाने से, मार देने से कुछ नहीं होगा। उस समय लेफ्टिनेंट हडसन दिल्ली पर अटैक करते हैं, बहादुर शाह जफर के शायद 2 बेटे पोते, इन सबको मार भी देते हैं। बहादुर शाह जफर का वहां पे मुगल एम्पायर एक तरह से फाइनली खत्म हो जाता है। दिल्ली पर ब्रिटिशर्स का वापस कब्जा हो जाता है। क्लियर? Now next is on 4th June 1857 लखनऊ में रिवोल्ट हो जाता है। वहां पर जो रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरली होते हैं, हेनरी लॉरेंस, उनको मार देते हैं। उस समय के वहां पे अंग्रेज अफसर होते हैं हैवलॉक और ऑट्रम, हैवलॉक एंड ऑट्रम, दे ट्राइड कि भाई कैसे भी करके इसको कंट्रोल कर ले सिचुएशन को, बट दे फेल्ड एंड फाइनली नवंबर 1857 एक नाम होता है कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल, 2-1 बार नाम आएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, अंडरलाइन कर लेना। वो वापस लखनऊ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट सबसे पावरफुल रेजिमेंट्स में से मानी जाती है, आज भी इंडियन आर्मी की बहुत इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट। तो उनकी मदद से वो लोग ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट सॉरी नवंबर में हम लोग को ये करते हैं, ये कॉलिन वाला जो है ये तो मार्च अगले साल तक चलता है 1858 तक। 5th जून कानपुर वॉज ऑल्सो, जून को कानपुर में भी रिवोल्ट होता है।
वहां पर भी यही कॉलिन कैम्पबेल आते हैं, रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। कानपुर में नाना साहब को पेशवा भी डिक्लेयर कर दिया जाता है 5 जून को ही कि साहब नाना साहब जो हैं वो नेक्स्ट पेशवा होंगे, एंड तात्या टोपे सपोर्टेड है। अल्टीमेटली कैम्पबेल आते हैं, यहाँ पर भी दिसंबर के महीने की 6 दिसंबर की बात है, और यहाँ पर कानपुर को भी वापस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तात्या टोपे वहां से झांसी की तरफ निकल जाते हैं, ये फ्लाइट टू झांसी कि वहां पर चीजें मैनेज करनी, ठीक है। नेक्स्ट इस पार्ट में आता है कि जून 1857 में, जून के महीने में झांसी में फेमस इंसिडेंट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी में भी रिवोल्ट होता है। वहां पर रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच एक नाम आता है हुग रोज, वो अटैक करते हैं झांसी पर। झांसी से वो बच के तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर भी जाते हैं। ग्वालियर में सिंधिया परिवार होता है उस समय जो रूलर होता है, सिंधिया परिवार से वो कहते हैं कि भाई सपोर्ट कर दें, बट सिंधिया फैमिली वांटेड टू बी लॉयल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो मना कर देते हैं। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आगरा जाते हैं। और 17 जून के दिन रानी लक्ष्मीबाई डाइड, उन्हें शहीद हो जाते हैं अंग्रेजों से लड़ते हुए। तात्या टोपे वहां से बच के निकलते हैं। अल्टीमेटली 1859 में तात्या टोपे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही सिंधिया परिवार के किसी सामंत जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं उनकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको भी मार दिया जाता है। ऐसे ही इंसिडेंट बिहार में जगदीशपुर, वहां पर एक बहुत बुजुर्ग लीडर होते हैं कुंवर सिंह, करीब 80 इयर्स की एज होती है कुंवर सिंह की, एंड ही लेड द मूवमेंट इन बिहार जगदीशपुर। कुछ फेमस ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, कर्नल मैक्स, कर्नल मार्क, मेजर डगलस, इन सबको वहां पे वो मार देते हैं। अल्टीमेटली वो भी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पावरफुल होती है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर। वाराणसी में रिवोल्ट होता है जिसे कर्नल नील सप्रेस करते हैं, और इस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राजा वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ इंडिया में इतना लार्ज स्केल पे नहीं होता है, बट रिवोल्ट होता है। देयर आर नेम्स गिवन इन द आरबीएससी बुक, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं नाम। अब क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होता है, तो दीज नेम्स कैन बी रंग बापू जी गुप्ते सतारा, सोनाजी पंडित, रंगा राव, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव, मुंडारगी छोटा सिंह, ये कर्नाटक से हैं। कोल्हापुर में अन्ना जी, फडणवीस। तो ये ऐसे कुछ नाम है जो आरबीएससी की बुक में दे रखे हैं। शायद लास्ट 2 सालों से तो इस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पर मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आ सकते हैं, नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कि इस जगह पर कौन लीडर थे। तो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे।